Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to present the first video on the provisions of Transfer of Property Act 1882. The first video on TPA is about the basic structure of the Act, the Transfer of Property Act 1882. मित्रों, संपत्ति यंत्रण अधिनियम 1882 की ये पहली वीडियो है और इसमें हम लोग इस अधिनियम की सामान्य संरचना, आधारित संरचना पर चर्चा करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ द एक्ट, टू मेमोराइज द सेक्शंस ऑफ द एक्ट एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्ट। यह वीडियो तीन बातों को समझने में मददगार होगी। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। एक कि पूरे अधिनियम का ढांचा समझ में आएगा आपको। दूसरी बात, अधिनियम की धाराओं को याद करना संभव होगा और इस पूरे अधिनियम की संकल्पना समझ में आएगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर going further, I have to say you that these 4 points are very very important for you. On the matter of Transfer of Property Act, संपत्ति यंत्रण अधिनियम के विषय पर ये 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। This is Act number 4 of 1882. Act number 4 means it was passed on the 4th number of the Act passed in the year of 1882. It was passed on 17th February 1882, and at that time the Viceroy of India was Lord Ripon. So it was signed by Lord Ripon. It came in force on 1st July of 1882. There is a logic behind the date of enforcement of the Act. It is 1st July 1882 because the fasli session in India is started from the date of 1st July in every year. भारत में 1 जुलाई को ही फसली वर्ष शुरू होता है। संभव है कि इस वजह से ही इसे 1 जुलाई को लागू किया गया हो। दो इट इज नॉट वेरी मैटर फॉर दिस एक्ट, यद्यपि इस अधिनियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसको याद करने के लिए एक बात आप समझिएगा कि बिकॉज इट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इट डील्स द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. So it came in force on 1st July in the year of 1882. The transfer of properties are subject matter of concurrent list of the 7th schedule of the Indian Constitution under entry 6 of the 7th schedule. मित्रों, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में यह 6वीं प्रविष्टि पर है। But here you have to notice, you have to care that in the entry number 6 of the concurrent list of 7th schedule of Indian Constitution, transfer of property other than the agricultural properties, a transfer of agricultural properties are subject matter of entry number 18 of state list. Entry 18 of state list. ये क्या है? राज्य सूची के 18वीं प्रविष्टि में क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज. बट एक्ट डील्स द बोथ काइंड्स ऑफ ट्रांसफर्स. यह अधिनियम दोनों प्रकार के संपत्तियों के अंदर को डील करता है, whether it is
a property other than agricultural property or an agricultural property, चाहे वो कृषि भूमि का अंतरण हो या गैर कृषि भूमि का अंतरण हो, यह अधिनियम दोनों को डील करता है। ओके, नाउ I have to discuss the basic structure of the Act under the two subheadings. In the first heading, I will describe the nature and scope of the Act on the basis of preamble, and on the other heading, I will describe the classification of the Act. It means the contents of the Act, classification of the whole contents of the Act, the whole provisions of the Act. Chapter wise, only chapter wise. Here I have categorized the contents of the Act, not section wise, but on the basis of chapter. अध्याय अनुसार, अध्यायानुसार आपको यहाँ पे संपत्ति नियंत्रण अधिनियम का पूरा वर्गीकरण मिलेगा. So let us begin with the first subheading, that is nature and scope of the Transfer of Property Act 1882. We should proceed, we should go to understand the nature and scope of the Act through its preamble. हमें इस अधिनियम की प्रकृति और इसका क्षेत्र विस्तार जानने के लिए इसकी प्रस्तावना से चलना होगा. On the basis of preamble, it appears to us that the Act has been enacted to define and amend what define, what amend? Certain parts of the law relating to transfer of property. Certain part. It means it is not a complete codification on the laws of transfer of property. It is proved just on the basis of preamble of that. There's no need to go through the whole provisions under the Act to know that whether the Act is of exhaustive nature or not. It is a non-exhaustive Act codification. मित्रों, इस अधिनियम की प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा what? Whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law. Certain parts of the law. You have to underline the term certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties, and the other term is by act of parties. It means it has a very limited scope on the matter of transfer of property. संपत्ति नियंत्रण के विषय पर यह बहुत सीमित है. To know its nature and scope on the basis of preamble, you have to understand all kinds of transfers. The transfers. Transfer of property. It might be of two categories: by act of parties or by effect of law. By effect of law. All the transfers of property due to effect of law are not subject matter of this Act. Here the transfers of property by effect of law means transfer through succession, transfer of amount of maintenance, transfer of property to receiver, transfer of property through attachment,
grant of property in favor of a widow of soldier, announcement of award reward, ये जितने भी संपत्तियों का अंतरण है वे अंतरण इस अधिनियम में नहीं आते। उत्तराधिकार के माध्यम से होने वाला अंतरण, जैसे जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ जमींदारी एवोल्यूशन लॉज, जमींदारों के पास बहुत सारी संपत्तियां थी, जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट पास किया गया, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास किया गया, सारी प्रॉपर्टी उनके पास से चली गई, स्टेट में वेस्ट हो गई। इट वाज ए काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द एंटाइटलमेंट, द ओनरशिप ऑफ जमींदार टू द स्टेट, एंड इट वाज later on vested into the person who cultivated the, who was in cultivating the land, who cultivated the land. जमींदारों से संपत्तियां निकल के राज्य में गई, इट वाज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर, अपने आप में संपत्ति का अंतरण था। बट दैट काइंड ऑफ ट्रांसफर इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस एक्ट, बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ लॉ, वह विधि के प्रभाव की वजह से होने वाला अंतरण था, तो वो इस नियम में लीन नहीं होगा। इसी प्रकार जमींदारी के उन्मूलन के बाद जो संपत्तियां जमींदारों से लेकर राज्यों में गई, वो फिर जब राज्य ने किसको दे दिया, जोतदारों को, जो लोग लैंड कल्टीवेट कर रहे थे उनको। इवन दैट काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टू द कल्टीवेटर्स ऑफ लैंड आर नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस एक्ट, बिकॉज दैट काइंड ऑफ ट्रांसफर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय इफेक्ट ऑफ लॉ। But here, on the basis of preamble, according to preamble, it is an act has been enacted to define and amend certain parts of law relating to transfer of property by act of parties. By act of parties. Here, by act of parties. But even it is not true, not true. Not all kinds of transfers by act of parties are covered up by the act. यद्यपि इस अधिनियम की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि यह अधिनियम पक्षकारों द्वारा किए गए अंतरण पर लागू होता है, लेकिन उस पर भी यह पूरी तरह लागू नहीं होता। कैसे? इसको भी फिर दो पार्ट में बांट दीजिए। टू बी इफेक्टिव at any time and to be effective after death, to be effective after death, it means will, वसीयत पक्षकार द्वारा किया गया एक ऐसा अंतरण जो कि उसके मरने के बाद प्रभावी होता है। Will is a kind of transfer which is made by a party, a person, but it would be effective after death of the person, after death of the transfer. Will is not subject matter of this act. वसीयत यद्यपि though it is a transfer of by act of party, यद्यपि पक्षकार के कार्य से किया जाने वाला अंतरण है, लेकिन यह इस अधिनियम से शासित नहीं होता। ओके? The other transfers of property by act of property is to be effective at any time, either at the time of transfer or later on condition or without any condition, चाहे वो किसी भी समय अंतरित होना। इन अंतरणों में भी अब क्या हुआ, only certain parts of the law related to transfer of property, certain part कैसे, but not all kinds of transfers. फिर समझिए, दो इट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
but it covers, it deals only the transfer of property by act of parties and not the transfer by way of deal, other than the transfer by way of the will. वसीयत के माध्यम से जो पक्षकारों द्वारा अंतरण किया जाता है, उस अंतरण को छोड़कर केवल पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले अंतरणों पर लागू है, यानी इन पर लागू नहीं और इन पे भी लागू नहीं टीपी। बट इसमें भी, बट नॉट ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफर्स आर सेपरेटेड ऑफ दैट। और पक्षकारों के द्वारा वसीयत से भिन्न जो अंतरण होते हैं, वे सभी अंतरण भी इसमें डील नहीं है। बल्कि क्या है, बल्कि आप पाएंगे कि इसमें, इस अधिनियम में इतने प्रकार के द स्पेसिफिक ट्रांसफर्स, चैप्टर 3, 4 एंड 5, इनको हमने ग्रुप ए में रखा है। द स्पेसिफिक ट्रांसफर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द स्पेसिफिक ट्रांसफर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, केवल अचल संपत्तियों का। इसमें क्या क्या है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल, मूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज, मॉर्गेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज प्लेस, गिरवी कहा जाता है उसे मॉर्गेज नहीं कहा जाता। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्टेटमेंट ऑफ दिस एक्ट, अचल संपत्ति का पट्टा इस अधिनियम में। बट रेंटिंग द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन is not statement of this act, that is dealt by Hire and Purchase Act 1971. तो दो it provides though it has been enacted to define and amend certain parts of law relating to transfer of property by act of parties, but even it doesn't cover all the kinds of transfers, all the law relating to transfers of property, all kinds of transfers of property by act of parties. By act of parties को पहले दो पार्ट में बांट दिया। यह by act of parties to be effective at any time, to be effective after death of the transfer. It is called will. ये इससे डील नहीं होता, वसीयत इस अधिनियम से शासित नहीं होती। और इसके अलावा ये वसीयत कहां शासित होती है? फॉर मुस्लिम्स it is dealt according to provisions of Muslim law, and for others it is dealt according to provisions of the Indian Succession Act 1925. भारत में वसीयतों का विनियमन, वसीयतों का नियम संचालन मुस्लिमों के लिए उनकी शरीयत से होता है, और मुसलमानों से भिन्न लोगों के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधान से होता है, बट नॉट अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। चलिए यहां चलिए, टू बी इफेक्टिव एट एनी टाइम अदर देन दी, ओके, बट नॉट ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफर्स। व्हाई नॉट ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफर्स? बिकॉज़ इट इज हियर, इस अधिनियम में सेल यानी विक्रय, मॉर्गेज यानी बंधक, बंधक का मतलब किसी अचल संपत्ति पर लोन लेना, obtaining of debt on the basis of immovable property, providing the immovable property as security, keeping the immovable property as security, taking debt, taking loan, it is called transaction of mortgage. And lease and immovable property, किसी अचल संपत्ति का पट्टा। अब जरा देखिए, अगर चल संपत्ति का विक्रय है, इफ इट इज सेल ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इफ इट इज ऑब्टेनिंग ऑफ लोन और डेट ऑन द बेसिस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इफ इट इज रेंटिंग आउट एंड अ मूवेबल प्रॉपर्टी, देन इट वुड नॉट बी डील्ड अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसमें भी तो हाफ ही डील हुआ। जरा देखिए कितना नैरो, ठीक। तो सेल विक्रय,
अचल संपत्ति का है तब तो यह अधिनियम लगेगा, चैप्टर 3 सेक्शन 54 to 57. But if it is sale of movable property, then it would be dealt according to the provisions of under the provisions of Sale of Goods Act 1930. यदि यह चल संपत्ति का विक्रय है तो इस पर संपत्ति नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होगा, बल्कि क्या लागू होगा, माल विक्रय अधिनियम 1930 से वो शासित होगा। तो यद्यपि माल विक्रय अधिनियम के अधीन किस बात का विक्रय को शासित किया जाता है, चल संपत्ति का विक्रय, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सेलिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। It is a kind of transfer by act of parties, but that kind of transfer by act of parties to be effective at not after the death of the transferor is not subject matter of this act, is not being dealt by this act. वो इस अधिनियम से शासित नहीं हो रहा है। So what is the scope of the act? The act is not exhaustive. यह समावेशी नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो प्रियम्बल में लिख दिया गया सर्टेन पार्ट्स बाय ऑफ द लॉ रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, तो एक तो यहां से ही नहीं है। दूसरा क्या है, द टर्म कंसोलिडेशन हैज नॉट बीन यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द एक्ट। इस अधिनियम की प्रस्तावना में, उद्देशिका में समीकरण शब्द का प्रयोग नहीं है, जो कि आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलेगा, which has been provided in the preamble of Indian Evidence Act 1872, Criminal Procedure Code 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में देखेंगे, वहां भी कंसोलिडेशन टर्म है। जहां कंसोलिडेशन टर्म प्रियम्बल में होगा वही अपने विषय पर जनरली कंप्लीट कोडिफिकेशन माना जाएगा। ठीक है, जिस किसी अधिनियम की प्रस्तावना में कंसोलिडेशन टर्म होगा वही। इसमें एक तो कंसोलिडेशन टर्म नहीं है, so why it is proved that it is not an exhaustive law, it is not a complete codification of the provisions of transfer of property। संपत्ति नियंत्रण पर यह पूरा विषय नहीं। दूसरा, इसके प्रियम्बल में लिखा ही है enacted to define and amend certain parts of the law related to, केवल कुछ विधियों से संबंधित, और उसके आगे फिर लिख दिया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज नॉट बाय एनी वे। तो इन तीनों से क्या लगा कि ये संपूर्ण नहीं है, और फिर हमने जब यहां देखा तो और नया वही दिखाई दिया कि इवन जिन विषयों पे है भी उन पे भी पूरा नहीं है, लाइक सेल ओनली ऑफ मूल प्रॉपर्टी, लाइक ऑब्टेनिंग ऑफ डेब्ट ऑफ लोन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज, बट नॉट obtaining of loan on the basis of putting a movable property as security। किसी चल संपत्ति को अगर हम ज्वेलर के पास रख दें, इस रिंग को रख के लोन ले, it would be dealt according to the provisions of chapter 9 of the Indian Contract Act, that is of bailment। वो उपनिधान वाले प्रावधानों से डील होगा, and the transaction would be called as pledge। उसे गिरवी कहा जाएगा, उपनिधान कहा जाएगा, गिरवी कहा जाएगा, पड़यम कहा जाता है। ये वहां से शासित होगा। लीज, अगर हम मकान को किराए पर देते हैं तब तो चैप्टर 5 लागू होगा, लेकिन अगर हम कोई बाइक, मोटरसाइकिल, कोई कैमरा, कोई चेयर, कोई टेंट, अगर इन चीजों को हम भाड़े पर देते हैं, किराए पर देते हैं, then that kind of these kinds of transfers shall not be dealt according to the provisions of the Act, Transfer of Property Act। तो इस प्रकार के नियंत्रण संपत्ति नियंत्रण अधिनियम से गवर्न नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, बल्कि ये होंगे कि ये हायर एंड परचेज एक्ट 1971, क्रय अवक्रय अधिनियम 1971 एवं चैप्टर 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इन्हीं दोनों से मिलकर गवर्न होगा अगर वो चल संपत्ति का है। हमने स्पेसिफिक ट्रांसफर्स को जो चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, द टोटल चैप्टर्स यहां मैं लिख दे रहा हूं, 8 chapters and 137 sections।
इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय और 137 धाराएं हैं। तीसरे अध्याय से स्पेसिफिक ट्रांसफर शुरू होता है, विशिष्ट अंतरणों के बारे में चर्चा अध्याय 3 से। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सो 6 chapters, among that chapters are about the specific kinds of transfers. इनमें से भी जो 3 है, 6 में से 3 केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से है। यानी यहां इसका 1/2 सीधे कहां है, इसके बाहर, 1/2 इसके बाहर, 1/2 इसके बाहर। तो जिन विषयों पे है भी उसमें कितना नैरो है, कितना लिमिटेड है। हाँ, जब चैप्टर 6 में चलते हैं तो उसको हमने बी ग्रुप में किया, ऑफ एनी प्रॉपर्टी वेदर द प्रॉपर्टी इज मूवेबल और इमूवेबल। गिफ्ट, एक्सचेंज एंड गिफ्ट। चैप्टर 6 एक्सचेंज, विनिमय। ये चाहे चल संपत्ति से चल संपत्ति का करें, वेदर इट इज एन एक्सचेंज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनदर इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी to a movable property, or it is an exchange between an immutable property to immovable property। चाहे अचल संपत्ति का अचल संपत्ति से बदलाव किया जाए, चल संपत्ति को अचल के बदले बदला जाए। कार के बदले प्लॉट लिया, कार के बदले प्लॉट लिया तो भी, कार के बदले कार लिया तो भी, और मकान के बदले मकान लिया तो भी, ये सब एक्सचेंज इसी में डील होते हैं। ऑल द काइंड्स ऑफ एक्सचेंजेस आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस एक्ट। गिफ्ट, सभी प्रकार के गिफ्ट इसी अधिनियम से डील होते हैं। सभी प्रकार के गिफ्ट इसी अधिनियम से डील होते हैं। द थर्ड ग्रुप इज ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, अनुयोज्य दावों का अंतर। इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन चैप्टर 8, द लास्ट चैप्टर, एंड you have to know here that the nature of actionable claims are of movable। ठीक है, अनुयोज्य दावे केवल चल संपत्ति होते हैं, ये कभी अचल होते ही नहीं। तो अध्याय 8 चल संपत्ति के अंतर से संबंधित है। तो जरा देखिए, अगर विक्रय और लोन लेने के लिए संपत्ति का प्रतिभूत के रूप में रखा जाना या भाड़ेदारी संबंधी प्रावधानों को हम देखें तो इस पर अधिनियम आधी बात करता है, केवल अचल संपत्ति के अंतरण की बात करता है। अब यहीं पर मैं आपको बता दूं, चैप्टर 3, 4, 5 में ये सब कहां से कहां तक है, 54, 57। चैप्टर 3 में केवल 4 धाराएं। सबसे बड़ा अध्याय है चैप्टर 4, यहां मॉर्गेज बंधक, सेक्शन 58 to 104। इसमें 100 to 104 तक में चार्ज से संबंधित बातें हैं। द प्रोविजंस रिलेटेड टू चार्ज हैव बीन लेड डाउन under section 100 and 101 as a category, as a class. It should be said, it would be genuine to say, it would be right to say that it is from section 100 to 104। धारा 100 से 104 तक भार के बारे में बात की। लीज पट्टा सेक्शन 105 to 170। then after exchange 118 to 121। gift of any property section 122 to 129। 129 यहां क्या कहती है, द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर ऑफ गिफ्ट्स शैल नॉट अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम लॉ अप्लाइड ऑन गिफ्ट बाय अ मुस्लिम पर्सन। किसी मुसलमान व्यक्ति द्वारा अगर गिफ्ट किया जाए तो दैट इज कॉल्ड हिबा, उसे हम हिबा कहते हैं, और वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होगा, वो यहां से गवर्न नहीं होगा। ये कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 129। इसके अलावा एक्शनेबल क्लेम chapter 8 section 130 to 137। now we have to sit here। so the act is not an exhaustive codification, a complete codification on the matter of transfer of property। संपत्तियों के अंतर पर यह पूरा नियमन नहीं है। क्या क्या कमी रह गई, लैक ऑफ द टर्म कंसोलिडेशन। इसका यह मतलब नहीं कि इसे लिख ही दिया जा रहा, क्यों रह गई चर्चा की जाएगी। ठीक है, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये है सर्टेन पार्ट्स तीसरा है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ये जो टर्म यूज हुए हैं
चौथा है कि इसमें भी लिमिटेड है, जो हमने यहां से बताया आपको। दीज आर ग्राउंड्स दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये वही आधार है जिससे कहा जाता है कि अधिनियम पूरा नहीं है। और आखिरी क्या है, आखिरी यहां पे है वो है चैप्टर 4 सेक्शन 4। अब हम चाहते हैं यहां पे इसका क्लासिफिकेशन कर लें। 8 चैप्टर्स में से 6 पर हमने चर्चा कर ली थी। लास्ट 6 चैप्टर हैव बीन डिस्क्राइब्ड। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स I have categorized the whole 8 chapters into 2 groups. The first 2 chapters, section 1 to 4 and section 5 to 53A. It means section 1 to 53A. Section 1 to 53A have been classified by me into the first group under the heading of theoretical provisions. सैद्धांतिक प्रावधान हमने यहां करके लिखा है। इसमें चैप्टर 1 is of introductory nature फ्रॉम सेक्शन 1 to 4। इसमें 1 to 4 में 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट है। 1 में नेम ऑफ द एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दूसरा कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट 1 जुलाई 1882। देन एक्सटेंशन ऑफ द एक्ट, एक्सटेंशन ऑफ द एक्ट एक्सेप्ट द सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर सर्टेन टेरिटरीज इन इंडिया that is enforceable on the whole India। ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे यहां से। Then after section 3 defines several terms used in that, so section 3 is a definition clause। And section 4 provides that there are need of some supplementary act to enforce the provisions of the transfer of property act। धारा 4 कहती है कि इस अधिनियम में जो प्रोविजन है वो अपने आप में पूरे नहीं है, उनको इन्फोर्स करने के लिए कुछ और धाराओं के प्रावधान और अधिनियमों के प्रावधानों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से एक्ट है? एक है पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द सेकेंड इज इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब जरा सोचिए, दैट इज आल्सो अ ग्राउंड that is not exhaustive। ये भी एक आधार है कि अधिनियम पूरा नहीं है। जिन विषयों पर है भी उन पे पूरा नहीं है, बिकॉज नीड ऑफ अदर लॉज टू इन्फोर्स द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में अन्य अधिनियमों की जरूरत है। वो कैसे है? जैसे लिखा गया हु मे बी ट्रांसफर अंडर सेक्शन 7 अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अंतरण कौन कर सकता है? तो कहा गया कि जो व्यक्ति संविदा के लिए सक्षम है। देन व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? संविदा की सक्षमता क्या है? देन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज रिक्वायर्ड, इज अप्लाइड। तो ऐसे में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 में जो प्रावधान लिखे हैं उनकी आवश्यकता पड़ जाएगी। फिर लिखा हुआ है टू मेक a sale of an immovable property valid, the transfer must be registered। उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो ऐसे में ये सप्लीमेंट्री की भी जरूरत है। वेयर दैट इज अ कंप्लीट कोडिफिकेशन। ये अधिनियम कंप्लीट कोडिफिकेशन नहीं है। मैं इतनी बात बताने के लिए ये सारी बातें आपको बता दिया। आप एक इसमें एक्ट लिखिएगा, सॉरी एक केस लिखिए, कलेक्टर ऑफ गोरखपुर वर्सेस किस पे? ऑन द स्कोप ऑफ दैट। स्कोप ये एग्जॉस्टिव है कि नहीं है? ठीक है, क्या लिखेंगे? द एक्ट इज नॉट अ कंप्लीट कोडिफिकेशन ऑन नॉट ओनली द लॉज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बट इवन द transfers, even the provisions of law related to transfer of property have been laid down under this act। इस अधिनियम में जिन संपत्ति के अंतरणों की व्यवस्था की गई उन पर भी संपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनके लिए 2 अधिनियमों की जरूरत है। केस का नाम क्या है? कलेक्टर ऑफ गोरखपुर वर्सेस पलकधारी। कलेक्टर ऑफ गोरखपुर बनाम पलकधारी 1908 इलाहाबाद। The court held that the act is not
a complete codification on the matter of law related to transfer of property. संपत्ति अंतरण से संबंधित विषय पर यह अधिनियम संपूर्ण संहिता नहीं है। इसमें एक बात और चलते हैं, तो चैप्टर 1 में इतनी बातें आपको मिल गई, 2 में क्या मिली? सेक्शन 2 थियोरेटिकल, बेसिकली थियोरेटिकल यही है। इसमें भी सेक्शन 5 to 37 आर अप्लाइड ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 5 to 37, धारा 5 से 37 चल अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति का अंतरण हो पर लागू होती है। बट द प्रोविजंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 38 to 53A आर अप्लाइड ओनली अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। धारा 38 से 53 को केवल अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित है। कैसे समझिए, प्री के लिए बहुत ही क्वेश्चन है। अध्याय 2 धारा 5 से 53 तक है, यही सैद्धांतिक है। एक्चुअली दिस इज थियोरेटिकल प्रोविजंस। सेक्शन 5 to 37 आर अप्लाइड ओनली ऑन ट्रांसफर ऑफ on transfer of any kind of property, whether the property is movable or immovable, but the provisions provided in section 38 to 53A, जबकि वे प्रावधान जो धारा 38 से 53 तक लिखे गए हैं केवल अचल संपत्ति के अंतरणों पर लागू है। और इनमें दोनों में एक बात सेक्शन 2 चैप्टर 1 के सेक्शन 2 में लिखी गई है कि लेकिन चैप्टर 2 के पूरे प्रोविजंस ही मुस्लिम लॉ में जो ट्रांसफर्स वैलिड होते हैं, यानी वे अंतरण जिस पर मुस्लिम विधि लागू होती है, उन पर ये कोई भी बातें लागू नहीं होगी। तो मुस्लिम लॉ के कॉन्ट्रेरी अगर यहां प्रोविजन है तो वो लागू नहीं होगा। ये कहां लिखा गया? सेक्शन 2 में, जो चैप्टर 2 के नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम लॉ। एंड सेक्शन 129 में भी कहता है, सेक्शन 129, 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो मुस्लिम लॉ की कॉन्ट्रेरी होने पर टीपीए के प्रोविजंस को रोक देते हैं और मुस्लिम लॉ को सुपीरियर डिक्लेयर करते हैं। सेक्शन 2 इट डिक्लेयर सुपीरियर टू द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम लॉ टू द ओवर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट, एंड सेक्शन 129 डिक्लेयर्स द सुपीरियरिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम लॉ रिलेटेड टू गिफ्ट of a Muslim person and the provisions of gift provided in the transfer of property act. संपत्ति अंतरण अधिनियम के जो दान संबंधी व्यवस्था की गई है उस पर अगर मुस्लिम व्यक्ति दान करता है तो मुस्लिम व्यक्ति के नियम भारी होंगे, ये नियम लागू नहीं होंगे। इस प्रकार आपने पूरे अधिनियम की चर्चा की। अब हम इस चर्चा के बाद एक चित्र के माध्यम से आपको बता दें कि एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है क्या। इसको हम यहां देखते हैं कि एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, बल्कि इसको भी थोड़ा जगह के लिए मिटा दें। देखिएगा, सपोज करिए कि ये ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी प्रकार की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं सब है। ये सपोज करिए ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। फिर क्या हुआ इसमें? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड बाय इफेक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, इसको हमने कर दिया ए, इसको कर दिया बी। बाय लॉ, बाय पार्टीज। ओके, तो टीपीए इसी में आएगा। बाय पार्टीज में फिर हमने 2 पार्ट कर दिया। चलिए छोटा सा ही पार्ट हमने निकाल दिया, विल। तो इस पे टीपीए लागू नहीं, इस पे टीपीए लागू नहीं, वसीयत पे लागू नहीं। और ये जब दो इट इज बिल इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टी, लेकिन इस पर अधिनियम लागू नहीं है तो अधिनियम से छूटा हो गया। फिर चलिए इसमें भी आइए, तो इसमें भी ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफर्स अदर देन ट्रांसफर बाय वे ऑफ बिल इफेक्टेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज आर नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट। इसमें भी कुछ अधिनियम, कुछ बातें ही लागू है, जैसे सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लीज ऑफ, देन आफ्टर इसको बांट देते हैं। ये क्या है? सेल है। तो सेल में केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल ही ये डील करेगा। ये अगर भाड़े पर देना है तो केवल अचल संपत्ति की भाड़ेदारी लीज ही ये डील करेगा।
ये है बंधक रखना, गिरवी रखना, तो केवल अचल संपत्ति को ही डील करेगा। देन आफ्टर गिफ्ट, चाहे किसी तरह का हो, एक्सचेंज चाहे किसी तरह का हो, सबको डील करेगा। लेकिन अभी बहुत सारे प्रोविजंस बच रहे हैं। वो क्या? ट्रस्ट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, गेटिंग ऑफ ट्रस्ट। हम जब न्यास करते हैं तो भी संपत्ति का एक अंतरण है, वो इसमें डील नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे अंतरण यहाँ पे हैं जो छूटे हुए हैं, जिसमें आ गया ट्रस्ट। हम अगर इजमेंट किसी को देते हैं, किसी से हम वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि ओपन योर विंडो ऑन माय लैंड, मेरे जमीन पर अपनी खिड़की खोल, तो वो इससे डील नहीं होता है, वो इजमेंट एक्ट से डील होता है। हम अगर पार्टनरशिप एक्ट में कोई चीज ट्रांसफर करते हैं तो वहां डील होता है। हम अगर शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं तो वो उस दूसरे एक्ट में डील होता है। हम अगर बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो NIS नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से डील होता है। सो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसफर्स व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय दिस एक्ट। तो जरा देखिए कुल मिला के अधिनियम कितना सा, हम इसको ऐसे बांट दें कि इसमें इतना ही, सॉरी इसमें मान लें कि इतना ये कवर कर रहा है, ऐसे ही ये जो लीज वाला इसमें इतना कवर कर रहा है, फिर मान लें कि इसमें इतना ये कवर कर रहा है, और ये है पूरा आपका गिफ्ट और एक्सचेंज। तो अल्टीमेटली ये कवर कितना किया? पूरे लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कवर तो इतना ही किया ना। जरा देखिए हम क्या कह रहे हैं आपको कि ये कुल मिला के इतना ही तो कवर कर रहा है। ये विक्रय है लेकिन अचल संपत्ति का विक्रय हो रहा है इसमें। ये आपका भाड़ेदारी है, पट्टा, लीज, लेटिंग आउट, उसमें क्यों अचल संपत्ति को गवर्न कर रहा है। अच्छा, ये भी पूरा नहीं डील कर रहा है। ये मॉर्गेज है तो गिरवी को ये नहीं कवर कर रहा है। गिरवी को कवर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि गिरवी जो है वो अचल संपत्ति की होती है, चल संपत्ति की होती है, और वो किसका सब्जेक्ट मैटर है? दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट। तो इतने बड़े एरिया में हमने क्या शो किया था? ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज। लेकिन ये इसमें केवल इतना सा ही रोल प्ले कर रहा कौन? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देन देयर इज अ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। एक प्रश्न आपसे पूछा जाना चाहिए कि अगर इतने बड़े संपत्ति यंत्रण के क्षेत्र में संपत्ति यंत्रण अधिनियम, ये जो संपत्ति यंत्रण अधिनियम है, हमने जो डिजाइन दिखा दी ये करके, ये जो डिजाइन हमने दिखाई ये क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की का सरफेस है, उसकी एरिया है। तो जब इतने ही एरिया को वो डील कर रहा है, देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फिर इसे हम संपत्ति यंत्रण अधिनियम कह क्यों रहे हैं? व्हाई इज इट नॉट ब्लेम्ड टू मिसलीड, टू बी ऑफ मिसलीडिंग नेचर? इसे हम क्यों न कह दें कि इस अधिनियम का जो नाम है वो मिसलीड करेगा लोगों? क्यों न कह दिया जाए कि जब ये केवल अचल संपत्ति के विक्रय, अचल संपत्ति की भाड़ेदारी, अचल संपत्ति के आधार पर लोन लेना, दान, चाहे अचल अचल की संपत्ति का हो, और विनिमय। चलिए एक्शनेबल क्लेम को भी नीचे हमने जोड़ दिया थोड़ा सा। तो जब ये इतने पे ही है, फिर हम क्यों नहीं से कह दें कि ये कंप्लीट कोडिफिकेशन तो नहीं है, बल्कि इसका नाम भी गलत है? तो इसका आंसर आएगा नो, नेम ऑफ द एक्ट इज राइट एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन द काइंड्स ऑफ ट्रांसफर्स व्हिच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस एक्ट। ये उन अंतरणों के प्रकारों पे इसका नाम नहीं है जो इस अधिनियम में दिए गए हैं, बल्कि द नेम इज, एक्ट ऑफ द नेम इज because of the provisions of chapter 2। इस अधिनियम का जो नाम है संपत्ति यंत्रण अधिनियम, वो अध्याय 2 की प्रावधानों की वजह से है। क्योंकि अध्याय 2 के जो प्रावधान हैं वो केवल इस अधिनियम के ही विशेष अंतरणों पर ही लागू नहीं होते हैं, बट द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 आर जनरली एप्लीकेबल ऑन any kind of transfer
whether it is subject matter of Transfer of Property Act or of any other law, चाहे वो इस अधिनियम के अधीन हो या किसी भी अधिनियम में। अध्याय 2 जो थियोरेटिकल पार्ट में आ रहा है, ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसी के नाम पर इसका नाम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रखा गया है। अब केवल एक चीज बाकी है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द एक्ट। इस अधिनियम का क्षेत्र विस्तार कहां तक है, हम आपको इतना तो बता दें, द एक्ट इज इन्फोर्स्ड ऑन होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं। ऊपर से चलते हैं, नक्शा भारत का देखिए, पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ हरियाणा, द 4 नॉर्थ स्टेट्स, चारों उत्तर के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। देन आफ्टर द अदर माउंटेन स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो जम्मू कश्मीर पे तो बिकॉज ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 370 ये लागू नहीं है, और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पहले एक ही स्टेट थे। जब ये एक्ट बनाया गया तो वहां लागू नहीं किया गया, क्योंकि तब वो भारत की ब्रिटिश इंडिया के टेरिटरी में उस तरीके से नहीं था, स्पेशल सिचुएशन को लागू नहीं किया गया। सिक्किम बाद में कंट्री अपने देश में आई है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पहाड़ी इलाके हैं, इस नाते वहां इस अधिनियम को लागू करना ठीक नहीं है। तो इस तरह से 7 प्रदेशों में यह अधिनियम लागू नहीं है, एक्सेप्ट द 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट इज इन्फोर्स्ड ऑन द होल इंडिया, बट हियर अ केस हैज टू बी नोटेड। एक वाद आप लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज A.N. लोधी वर्सेस नर्मदा भाई 1953 बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। केस का नाम A.N. लोधी बनाम नर्मदा भाई, A.N. लोधी वर्सेस नर्मदा भाई 1953 1953 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा गया, जहां यह अधिनियम भारत में जहां कहीं भी यह अधिनियम लागू नहीं है, वहां भी इसके प्रावधान लागू होंगे। इस अधिनियम के नाते नहीं, बल्कि साम्य, शुद्ध अंतःकरण व सद्विवेक के आधार पर इसके सामान्य नियम लागू होंगे। In this case, court held that, explained that, clarified that the provisions of the act would be applied in the territory of India, where that is not practically enforced on the basis of equity, justice and self good conscience। तो इस तरह से इस पूरे अधिनियम पर चर्चा आपने कर लिया। थैंक यू।